केबलें लगा लो, तसल्ली से करवाएंगे। बाबर फदी बाबर फदी यार यासीन चलो गाड़ी ले जाओ। भाई बैठो इधर ही धरना है बैठो बैठो मीडिया की आजादी तक जंग रहेगी मीडिया की आजादी तक 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 गुंडागर्दी मलिक साहब बारक इसका पर मलिक साहब 2 मिनट तो मुझे बात करने दो। आपके लिए तो आसान है पहुंचने वाले हैं ये सारे अपोजिशन लीडर और दूसरे अफगान आए बाहर। तुम तो हाथ लगाए यार मैं तुमको बता रहा हूं सेठ में अच्छा शोर नहीं है हाथ नहीं लगा बस वो लोग बस बाकी पड़े हो इससे बनाना नहीं चाहिए जो भी है इजाजत नहीं है पीछे जाओ साहब किस बड़वे ने इजाजत नहीं दिया है किसी को इजाजत नहीं लेटर किसी को इजाजत नहीं इजाजत दी है मीडिया को भी इजाजत नहीं है इस तरह का इधर ही दे दो इधर ही बैठ जाओ इधर ही नहीं इधर ही आज नफरी आगे ले बहुत शुक्रिया सहाफ़ी भाइयों, सारी चीज़ें आप अपनी आँखों से देख रहे हैं। इस वक्त तो हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि कल से एक तरीक़ा वारदात शुरू किया है। जाम की हुकूमत ने हमारे विज़िटर्स को भी तंग करना शुरू किया, गेट्स के लिए बंद किया और उसके बाद आप हज़रात आते हैं तो आप भी पाबंदी लगाई। कल तो हमने बड़ा नरम अंदाज में हमने कहा ऐसा नहीं होता है। फिर मैंने कल CCPO साहब से भी बात की, मैंने उनको भी बताया कि बाबा तुम एक काम तो करो, हमें गिरफ्तार करो, बात ख़त्म हो जाएगी। अभी भी ये जितने पुलिस वाले सारे खड़े हैं कि हमारा एक ही मुतालबा है कि ले जाओ, तुम्हारी भी जान छूट जाएगी, हम लोग भी अपना लीगल वे उठाएंगे, जिस तरीके से जिस तरफ हम जाएंगे हमारा रास्ता भी निकलेगा। अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पे उन्होंने पाबंदी लगाई, हम पैदल आए, आपको इधर तक छोड़ा और उसके बाद फिर इन्होंने भी वो लगा लिए, आपको भी जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। तो ये एक किस्म का, इसको आप जमहूरियत तो बहुत दूर की बात है, डिक्टेटरशिप भी दूर की बात है।
یہ تو جنگل کا قانون ہے اور درندگی ہے. ہم نکلے بھی اس لیے, ہم نے جو احتجاج شروع کیا اسی درندگی کو ختم کرنے کے لیے, اسی جنگل کے قانون کو ختم کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں. لیکن جب بات نہیں سنی جاتی, جب انصاف نہیں ہوتا, تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پھر ہمارا اس رہنا بھی پھر کوئی حیثیت نہیں رکھتا, ہمارا زندہ رہنا بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. کیونکہ جب ہماری بات انصاف کی نہ سنی جائے, بلوچستان کے اقدار کو پامال کیا جائے, بلوچستان میں قانون ختم ہو جائے, قانون کا نفاذ ختم ہو جائے, تو پھر یہ لوگ پہلے سے پسماندہ ہے. پھر جب درندگی کا شکار ہوں گے تو ان کی حیثیت کیا ہوگی. یہ وہ ہمارا جو ہم نکلے ہیں یا جو ہمارا احتجاج ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم نے 19 مئی سے یہ تحریک شروع کی ہے کہ بلوچستان کا اب تک جتنا استحصال ان 3 سالوں میں ہوا ہے, یہ استحصال بند کیا جائے. بلوچستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں کو بندربانٹ نہ کیا جائے. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بھی ہیں, پورے بلوچستان کے عوام کے سامنے بھی ہے. 18/6 تک ہمارا یہ احتجاج کارگر نہیں ہو رہا تھا. اسمبلی کے باہر بھی ہم نے پڑاؤ لگایا, ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ بھی ہمارے ساتھ رہی, لیکن کوئی اثر نہیں ہوا. 18/6 کو اتنا ظلم آج کل دنیا میں کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے ایم پی ایز کو بختر بند گاڑی سے کچلنے کی کوشش کی. ہمارا ایک ساتھی اب بھی ہاسپٹل میں اسلام آباد میں, کوئٹہ میں اس کو ریفر کیا اسلام آباد کراچی کے لیے, پھر اسلام آباد کے لیے. اب اس کا آپریشن ہوا ہے, وہ انڈر ٹریٹمنٹ ہے. ہمارے 2 اور ایم پی ایز جی ملک بابو رحیم مینگل اور ہماری خاتون بہن وہ شکیلہ دیوار, وہ بھی زخمی ہوئی. اس طرح ہمارے کئی ایم پی ایز کو بٹ مارے گئے پولیس کی طرف سے. ہم اپنے زخمیوں کو لے کر ادھر تھانے آئے اور درخواستیں دی کہ جی ہمارا FIR چاک کیا جائے. یہ ہمارا زخمی ایم پی اے ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, آپ لوگوں کے سامنے ہے. یہ ہماری خاتون ایم پی اے ہے, اس کو زخمی کیا گیا ہے. یہ ہمارے بابو رحیم مینگل صاحب ہیں, ان کو زخمی کیا گیا. ثنا بلوچ کو گلے سے پکڑ کے کہ تمہاری کھوپڑی اکھاڑ دیں گے, تمہاری کھوپڑی جو ہے اڑا دیں گے. اس طرح نصر اللہ زیر, کیا نام ہے, احمد نواز بلوچ, اختر حسین لانگو, ان پہ بھی بٹ مارے گئے. احمد نواز کو بھی یہ قمیص ان کا پھٹ گیا, لیکن پولیس نے ہماری کوئی FIR درج نہیں کی. اس کے بعد یہ ہوا, ہم چلے گئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ پولیس نے ہمارے خلاف جام کے کہنے پہ ہمارے خلاف FIR درج کی. FIR درج کرنے کے بعد چونکہ ہم نے سمجھا کہ ہم تو لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں, اور یہ اتنے جو ہمیں بختر بند گاڑی سے اڑانے والے ہیں, کوئی پاکستان میں, کوئی بلوچستان میں ایسا دیکھنے والا نہیں ہے کہ ایم پی اے کو آج تک کسی نے بختر بند گاڑی سے اڑایا ہے. پورے بلوچستان میں اس قسم سب کی آنکھیں بند ہیں, سب اندھے ہیں, سب بہرے ہیں, سب گونگے ہیں, کسی کو سب بے حس ہیں. ان کو ہمارے مارنے سے خوشی ہوتی ہے, تو ہم اب بھی ان کو کہتے ہیں کہ بابا ہمیں مار دو, تمہاری جان چھوٹ جائے گی. تم اگر بختر بند گاڑی چلا سکتے ہو تو ایکسپریس بھی ہم پہ چلا لو, ہماری جان, تمہاری جان چھوٹ جائے گی. لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جام چھوٹ جائے گا, قطن نہیں چھوٹے گا. جام کی جان قطن نہیں چھوٹے گی. جام نے جو بھی کرپشن کی ہے, جو قانون کو پامال کیا ہے, جو لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے, جو جنگل کا قانون نافذ کیا, ایک ایک پائی کا اس کے ساتھ حساب ہوگا, ایسے نہیں چھوڑا جائے گا. اس کے بعد ہم آئے تھانے, آج 12واں دن ہے, ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہمارا ایک مطالبہ ہے جی, ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف جتنے تمہارے پاس PPC کے دفعات تھے, سیکشنز تھے, وہ سارے تم نے ہمارے خلاف لگا دیے. اب یہ کرو کہ ہمیں گرفتار کرو. اب 12 دن کے بعد بھی ہماری درخواست نہیں مانی جاتی ہے گرفتار کرنے کی, تو ہمارے لیے کون سا راستہ رہ گیا. ہم ان پولیس والوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ
भाई वो रास्ता तो बताओ। 12 दिन से हम बैठे हैं, हमें नहीं गिरफ्तार कर रहे हो। ये मजिस्ट्रेट साहब हैं, ये जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के ऑफिसर्स हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं, हम उनसे ये पूछते हैं कि भाई तुम बताओ हम कहाँ जाएं, तुम बताओ हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें। हम कहते हैं हमें गिरफ्तार करो, और बदनीयती से, द्रोहगोई से वो अखबारात में दे देते हैं कि जी हमने FIR विड्रॉ किया। भाई FIR विड्रॉ किए तो उसकी पर्ची ला कर दो। अगर तुमने कोई, लेकिन हमारे पास 5 दफ़ा इन वज़रा की वफूद आए, और आखिरी दफ़ा आज 4था दिन है, उन्होंने कहा कि जी आधे घंटे के बाद हम आएंगे, FIR विड्रॉ करेंगे, बाकी बातें फिर बाद में देखी जाएंगी, आपके खिलाफ FIR विड्रॉ होगा। अब आधे घंटे को अब 4 दिन हो गए, कोई भी फिर नहीं आया। हमने फिर अगले दिन, आपने देखा, हमने प्रेस में कह दिए कि जी इस मकसद के लिए दोबारा आप हमारे पास ना आए। आप 1 दफ़ा झूठ नहीं बोलते हैं, 2 दफ़ा नहीं बोलते हैं, 3 दफ़ा मुसलसल आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। तो हमारे लिए अब कौन सा रास्ता रह गया? हम तो एहतिजाज करेंगे। हमने ये तय किया हुआ है कि हम बलूचिस्तान के वसाइल को लूटने के लिए किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो जो भी जोर लगाए, चाहे जो भी वो कुव्वत इस्तेमाल करे। हमारी जो सियासी पार्टियां हैं, हमारी जो सियासी क़यादत है, वो हमारे पुष्ट पर है। उनकी मुशावरत से बहुत 3 साल इंतज़ार के बाद बहुत सोच समझ कर हमने ये कदम उठाया है। अब ये जो आप हमारे साथ पुलिस वालों जुल्म करते हो, करो, लेकिन इसका हिसाब भी लगाओ, हमारा कसूर भी हमें बताओ। हम तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। हम आपसे कहते हैं कि जी हमें गिरफ्तार करो, हमारे खिलाफ जो तुमने दफात लगाए उसके खिलाफ चालान हमें करो। हम जाने, अदालत जाने, बेगुनाह हुए तो छूट जाएंगे, लेकिन जाम और इसके हवारियों का जुल्म हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस सूबे में जो कुछ हो रहा है, ये सब आप देख रहे हैं। मीडिया वाले भी बाखबर हैं, पुलिस वाले भी बाखबर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी बाखबर हैं, और ये जो अवाम भी बाखबर हैं कि यहाँ पे लूट मार का बाज़ार गर्म है। इस लूट मार के बाज़ार को अब हम नहीं चलने देंगे। आज अगर आप यहाँ पे बिठाते हैं तो हम ठीक है, रात यहाँ गुजार लेंगे, लेकिन हम ऐसा अगला कदम उठाएंगे, फिर आप भी हैरान होंगे कि आपने क्या किया। अब तो हम थाने में आराम से बैठे हैं, हम इन सब की इज़्ज़त करते हैं, पुलिस वालों की भी इज़्ज़त करते हैं, हम आराम से बैठे हुए हैं। अब तुम अपने कानून को लागू करो हम पे। अगर नहीं लागू करोगे तो हमारा एहतिजाज तो रहेगा, हमारी सियासी जमातें निकलेंगी, और फिर ऐसा कदम होगा कि जाम साहब आपको के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। तो इसलिए मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि हमें पुलिस वालों से भी कहता हूँ कि हम जाके वहाँ पे पुरअमन एक आधे घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम वो करेंगे। हमारे लोग हैं, मुअज़्ज़िज़ीन हमारे पास आते हैं, बलूचिस्तान के कबायली सरदार नवाब हमारे पास आते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग आते हैं हमारे पास, मुख्ताजिर जो भी माशरे के जो इज़्ज़त वाला तबका है, सहाफ़ी हज़रात हमारे पास आते हैं। आप उनको रोकते हैं तो ये बुरी बात है, गलत बात है। आप अपने बड़ों को बताएं, आप उस बात के पाबंद हैं जो कानूनी हो। आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, आपको हाई कोर्ट ने भी कहा है, आपको अपना ज़मीर भी कहता है। आप जो ओथ उठाते हैं सर्विस में आने के लिए, वो आपका आइन भी आपको ये बताता है कि कोई गैर कानूनी आर्डर अपने सुपीरियर्स का मत मानो। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, चाहे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के हैं, ये अपने कानून के पाबंद हैं, अपने ज़मीर के पाबंद हैं। हम मुजरिम हैं तो कह दें, हमें गिरफ्तार का हमारा मुतालबा भी यही है, लेकिन गैर कानूनी हुक्म, जाम का गैर कानूनी हुक्म मानने वालों को हम फिर कहेंगे कि आप अपनी फ़राइज़ जो है वो दयानतदारी से अदा नहीं कर रहे हैं।
जाम वो हर हुक्म अदा करता है जिससे अपोजिशन क्रश हो, जिससे उसके लिए जो बलूचिस्तान के वसाइल लूटने का मौका हो। ऐसा भी नहीं होगा। एक भी अपोजिशन का हमारा साथी जिंदा बच जाए तब भी जाम साहब अब जो आपने नखरे 3 साल में किए वो नखरे अभी आपके ख़त्म हो गए। आज हम आपको ये कहते हैं कि अगर हम पे पुलिस वालों आप भी सुन लें, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों आप भी सुन लें, अगर आप हमें ऐसा तंग करेंगे तो हम मजबूर हैं, हम इसी थाने में भूख हड़ताल का ऐलान भी कर सकते हैं। और जब हमने भूख हड़ताल का ऐलान किया तो हमारी सियासी जमातें फिर आप अपना हशर देख लीजिए। बहुत शुक्रिया आप हजरात। देखें साफ़ी अज़म, मैं 2 बातें आप दोस्तों के सामने रखता हूँ। हमने उस दिन असेंबली में भी चीख के कहा कि यहाँ पे जाम जो है पुलिस को इस्तेमाल कर रहा है और पुलिस फोर्स जो है ये गुंडा फोर्स बन गई है। यहाँ पे जो है पंजाब के कल्चर के मुताबिक पुलिस को सियासत में इस्तेमाल किया जा रहा है, सियासी वर्करों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। उसकी एक झलक हमने आज आपको इस रोड पे भी दिखा दी। आज आप मीडिया वाले भी इसकी गवाह हो कि आज आपको भी यहाँ पे रोका गया। जब हम आए ये बताने के लिए कि मीडिया के दोस्तों को छोड़ा जाए, हमारे साथ आपके इन कैमरों की आंखों ने भी देख लिया कि हमारे साथ हम 3 MPA और अपोजिशन लीडर हमारे साथ थे। हमारे साथ के जो रवैया रखा गया, AC हमें धक्के दे रहा है, SP हमें धक्के दे रहा है, पुलिस के सिपाही हमें धक्के दे रहे हैं, पुलिस के इंस्पेक्टर हमें धक्के दे रहे हैं। तो ये रवैया जो है ये जाम कमाल जो है यहाँ पे वो पंजाब कल्चर को मुतारिफ कराना चाह रहा है। पुलिस की गुंडागर्दी के ज़रिए सियासी कारकुनों को दबाने की कोशिश की जा रही है और इस मकसद के लिए ख़ासकर पुलिस के जो स्पेशल गुंडे पंजाब से मंगवाए गए हैं और उनको यहाँ पे पोस्ट दी गई है ताकि यहाँ पे वो पंजाब मॉडल के मुताबिक जो है यहाँ पे पुलिस को सियासत में घसीट के पुलिस को और आवाम को जो है वो एक दूसरे के मुकाबिल खड़ा करके पुलिस को और आवाम को फोर्सेस को जो है दस्तो गिरेबान करके वो वहाँ आराम से बैठ के अपनी PSDP के मज़े लूटते रहे। इस बात की मलिक साहब ने कहा कि हम कतई इजाज़त नहीं देंगे और पुलिस के इस रवैये के ख़िलाफ़ अब हम अपनी कायदीन की इससे मशावरत भी करेंगे और पुलिस के इस रवैये के ख़िलाफ़ हो सकता है कि हम ये फैसला कर लें कि हम इस थाने के अंदर तादम मर्ग भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। अगर पुलिस की रविश यही रही, पुलिस ने हमारे मुलाकातियों को यहाँ पे इज़्ज़तदार लोग जो हमारी मुलाकात के लिए आते हैं उनको बेइज्जत करने की कोशिश की, उनको रोकने की कोशिश की, तो हम इसी थाने में तादम मर्ग भूख हड़ताल की काल भी दे सकते हैं। बहरहाल मैं ये बात आप साफ़ी हजरात को गवाह करके कहता हूँ। मैं आप दोस्तों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आज ये हमारी बेइज्जती नहीं थी, ये आप सहाफ़ियों की बेइज्जती थी, मीडिया के लोगों की बेइज्जती थी कि उनको रोड पे रोका गया। हम मलिक सिकंदर, अहमद नवाज, असगर तरीन, आजिज़ आबिद, हम जो है हम आपकी इज़्ज़त की खातिर यहाँ पे रोड पे निकले थे। आपकी इज़्ज़त की खातिर आज एक दफ़ा फिर हमें धक्के दिए गए, आपकी इज़्ज़त की खातिर एक दफ़ा फिर हमारे गिरेबानों पे हाथ डालने की कोशिश की गई। मैं आप दोस्तों से भी गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के बदबख्त, इस तरह के जो है गुंडा, इस तरह के बदरवाज और रवायात से अबतर जो है हुकूमत का आप दोस्त भी बाइकाट कर लें और हम यहाँ पे थाने में बैठ के आपकी जंग लड़ेंगे। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अपना जंग प्रेस क्लब में बैठ के लड़ें। नायब सूबाई हुकूमत मुर्दाबाद, नायब सूबाई हुकूमत मुर्दाबाद, गिरफ्त वज़ीर आला मुर्दाबाद, गिरफ्त वज़ीर आला मुर्दाबाद। ये किस कानून में लिखा हुआ है कि आप एक शख्स पे FIR काटें और वो 12 दिन आपके थाने में मौजूद हो और आप गिरफ्तारी डालें? ये किस कानून में लिखा हुआ है? नंबर 2, ये किस कानून में लिखा हुआ है अगर कोई शख्स, कोई मोतबर, कोई सरदार, कोई गरीब, कोई भी शख्स आपसे मिलने आता है, आप उसको मिलने से रोके? किस कानून में ये लिखा हुआ है? मुझे आप बताएं। तीसरा, किस कानून में ये लिखा हुआ है कि आज से 4 दिन पहले, 2 दिन पहले मीडिया को आने की इजाज़त थी, वहाँ पे बात करने की हमें इजाज़त थी और अभी मीडिया को बंद कर दिया गया है? ये जो मौजूदा सूरत चल रही है ये आमरीत से भी बदतर चल रही है। आमरीत का भी इन्होंने मुकाबला तोड़ दिया, आमरीत का भी, उससे भी ये आगे 2 कदम आगे चले गए। किस दौर में इस तरह हुआ जो मौजूदा दौर में हो रहा है? जैसे मलिक साहब ने कहा और अख्तर हुसैन नागो ने कहा कि हम इस बात में मजबूर किया जा रहा है कि हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएं और हम ये करने को मजबूर होंगे और हमें करेंगे। और इन चीज़ों से हमारा रास्ता नहीं रोका जा सकता कि हमें यहाँ पे मीडिया को रोके और वहाँ हमें बात करने ना दें। हम किसी हद तक भी जाने को तैयार हैं।
पहली दफ़ा गलत बयानी से काम नहीं लिया। इन 3 सालों में अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो बहुत बड़ा एक तादाद बन जाता है। और ये जो इन्होंने कहा कि अपोजिशन में दरार है या उनमें कुर्बत ख़त्म हो रही है, ये 2021 का सबसे बड़ा झूठ है जो इन्होंने बोला है। उससे गुरेज करें, हम सब इकट्ठे एक जान हैं और आखिर तक, अब जब तक ये हमारे मकासद हासिल नहीं होते, जब तक हम बलूचिस्तान के वसाइल को बलूचिस्तान के आवाम के हवाले नहीं करते, तब तक हम चैन से कतई नहीं बैठेंगे। हम इकट्ठे हैं। वो खुद 4 हिस्सों में तकसीम है। वो आपने देख लिया बजट के दौरान जो सरदार यार मोहम्मद ने इस्तीफा दिया है, और जब बजट पास हुआ था इनकी तादाद कितनी थी, कितने लोग बैठे हुए थे। वो खुद 4 हिस्सों में तकसीम है। हमें क्या हिस्सों में तकसीम। इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूं। देखिए, हम आज इसी सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि वज़ीर आला जो ये झूठ वहाँ पे सीएम सेक्रेटरीट में बैठ के बोलते हैं, तो उनके तमाम उन झूठों से पर्दा उठा लें। इसीलिए वो उन्होंने आज बदनीयती किया और आप लोगों को रोका ताकि हम उनके वो झूठ के पर्दे जो है वो आश्कार न कर दें, उनका जो झूठा चेहरा है वो हम आवाम के सामने ना ला सके। बाकी हम उनको ये बताना चाहते हैं कि ना हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ है। हम जिस तरह मुत्तहिद थे इस तरह मुत्तहिद हैं और इसी तरह मुत्तहिद रहेंगे, और ना ही हम इनके ताने कचहरियों, जेलों, FIRों, जुल्म ज़्यादतियों से थक चुके हैं। हम ये अज़म का इज़हार करने के लिए आज हमने आपको बुलाया था कि हमें, ये तो अभी 13-14 दिन हो गए, हमें अगर 6 महीने भी बिठाए हम बैठेंगे, हमें साल भी बिठाए हम बैठेंगे, हमें 10 साल भी बिठाए हम बैठेंगे। इनकी जेलों से इनके जो वो परवरदा थे जनरल मुशर्रफ, हम उनकी जेलों से नहीं घबराए, हम उनके दौर में नहीं थके, तो ये बेचारे तो छोटे मोटे जेलें, इनसे भी हम कभी थकने वाले नहीं हैं। बहुत शुक्रिया। कदम बढ़ाओ।